The question number 1 says, when an electron accelerated by potential difference U is bombarded on a specific metal, the emitted X-ray spectrum obtained is shown in adjoining graph. If the potential difference is reduced to U by 3, the correct spectrum is. So basically we are given X-ray intensity versus wavelength graph, and we can observe two characteristic lines K alpha and K beta. So for minimum wavelength, we can use the formula, the minimum wavelength Hc by lambda m. This is the energy of photon or X-ray photon having energy lambda m. And this for minimum wavelength, the corresponding maximum energy will be Q into U. U is potential difference of voltage applied across the Coolidge tube. And if we change the potential difference to U by 3, then the lambda minimum will become QU by 3. And from these equations, we can divide these two equations. We will get lambda dash m upon lambda m equals to 3. So basically lambda dash m जो है वो हमारा आ जाएगा 3. This means जो आपकी मिनिमम वेवलेंथ है वो 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा एम आ जाएगी. तो मिनिमम वेवलेंथ अगर 3 टाइम्स लैम्डा एम है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं के अल्फा की जो वेवलेंथ है वो 2.5 लैम्डा एम है. दिस मीन्स अभी वेवलेंथ बढ़ गई है. दिस मीन्स एनर्जी कम हो गई है क्योंकि E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा होता है. तो अगर आप एनर्जी की बात करो तो एनर्जी यहाँ पर कम हो रही है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जो बॉम्बार्डेड इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी काफ़ी कम हो गई है और के अल्फा वाली लाइन से भी कम हो गई है. तो के अल्फा के बीटा दोनों हमें नहीं मिलेगी क्योंकि इस बार अब इलेक्ट्रॉन आपका के अल्फा वाला डिस्प्लेस नहीं होगा, वो रिमूव नहीं होगा. क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड हो रहे हैं उनकी एनर्जी सफिशिएंट नहीं है. सफिशिएंट नहीं है तो हमें कोई भी कैरेक्टरिस्टिक लाइन नहीं मिलेगी और हमें केवल कंटिन्यूअस ग्राफ मिलेगा. तो वो ऑप्शन बी है. कोई भी कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ हमें ऑब्जर्व नहीं होगी. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2. The question number 2 says, in a YTSC experiment, if a slab whose refractive index can be varied is placed in front of one of the slit, then the variation of resultant intensity at midpoint of screen with mu greater than 1 will be best represented by. So basically without slit, we can remember the formula of intensity is given by I equals to I naught cos square delta phi by 2. Delta phi is the phase difference between the waves arriving at the point. Midpoint of the screen, because so we are talking about the central maxima. तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पार्ट डिफरेंस आपका 0 आना चाहिए स्टैंडर्ड केस में, लेकिन हमारे यहाँ पर हमने रख दिया एक स्लिट. तो स्लिट अगर हमने यहाँ पर रख दिया जिसके थिकनेस टी है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ जाएगा और वो मैं बोल सकता हूँ जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस होगा वो म्यू टी माइनस टी होगा. ऑप्टिकल पाथ आपका म्यू टी माइनस टी. तो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आपके पास में म्यू टी माइनस टी आएगा, टी म्यू माइनस 1. और ये पाथ डिफरेंस है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस है दैट विल बी 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा t mu minus 1. So intensity will become I equals to I naught cos square 2 pi by lambda t mu minus 1. And our graph is starting from mu equals to 1. So we can put mu equals to 1 at mu equals to 1. We will get I equals to mu equals to 1 पर ये 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, I naught. दिस मीन मैक्सिमम इंटेंसिटी आनी चाहिए mu इक्वल्स टू 1 पर. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए और डी में
μ1 पर मैक्सिमम आ रहा है, लेकिन ए और सी में, सॉरी, लेकिन जो वेरिएशन है वो कोस स्क्वायर का है, तो ये लीनियर वेरिएशन नहीं आएगा यहाँ पर। सी अपना आंसर आ जाएगा इस केस में। क्वेश्चन 2 में आंसर सी। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3. So in question number 3, a particle A moves along a circle of radius r equals to 50 centimeter, so that its radius vector r relative to the point O. O point is this, rotates with the constant angular velocity omega equals to 0.40 रेडियन पर सेकेंड. सो O के अबाउट इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमें गिवन है. The modulus of velocity of the particle and the modulus of its total acceleration will be. तो बेसिकली पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी जो स्पीड रहेगी, यहाँ पर हमें बोल रखा है कि सर्कल में मूव कर रहा है और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है इसकी, तो यहाँ पर इसकी स्पीड टेंजेंशियल होनी चाहिए. नेट स्पीड इसकी टेंजेंशियल होगी, लेकिन हमें वो पॉइंट के अबाउट इसके एंगुलर वेलोसिटी गिवन है. तो हम कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ये सेंटर है आपका, ये एंगल थीटा है, ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, तो हमें डी थीटा बाई डी टी हमें गिवन है कि किस रेट से कम हो रहा है. जैसे ये इधर आएगा ये कम होगा, एंड आप इसे लिख सकते हो -0.4 रेडियन पर सेकेंड. इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों साइड सेम है, तो ये एंगल भी थीटा होगा. एंड यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में, लेकिन अगर मैं इस एंगुलर वेलोसिटी के अकॉर्डिंग देखूं तो इस स्मॉल आर के करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करूं, ये रोटेट कर रहा है वेक्टर, डेस्ड लाइन जो रेड वाली है वो रोटेट कर रही है ओमेगा से. तो इसकी जो वेलोसिटी रहेगी इस पॉइंट की, वो हम यहाँ इसके परपेंडिकुलर बता सकते हैं कि जो v डैश है ये आपका होगा ओमेगा इंटू आर, एंड ओमेगा हमें गिवन है 0.4 और आर हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पर बेसिकली जो एंगल है, एंगल की बात करते हैं, इन दोनों में क्या एंगल आएगा. तो ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा आएगा यहाँ पर जो एंगल है, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा आ जाएगा. तो यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये गिवन है कि जो नेट वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट आपका 0.4 आर होगा इस डायरेक्शन में. दिस मीन्स v cos थीटा हमारा होना चाहिए 0.4 आर. स्मॉल आर की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. आप कंस्ट्रक्शन कीजिए इस तरीके से कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं. यहाँ पर ये हमने कैपिटल आर रेडियस ले रखी है, थीटा है, तो ये जो डिस्टेंस है आर कॉस थीटा आ जाएगी, एंड स्मॉल आर को मैं लिख सकता हूँ 2r cos थीटा, एंड v हमें गिवन है, v हमें कैलकुलेट करना है, सॉरी, cos थीटा विल बी कैंसिल आउट, सो v विल बी 0.4 इंटू 2 इंटू r हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर, तो 50 बाई 100 मीटर में ले लेते हैं इसे, 1/2, सो v इज 0.4 मीटर पर सेकेंड. सो हमारी जो वेलोसिटी आएगी इस पार्टिकल की वो 0.4 मीटर पर सेकेंड होगी. तो हमें एक्सेलरेशन पूछ रखा है, एक्सेलरेशन की भी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं. कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी हमें दे रखी है, तो हम बोल सकते हैं इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी. तो यहाँ पर इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अगर स्पीड कांस्टेंट है, v इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही है पार्टिकल की. तो यहाँ पर केवल और केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की इक्वल होगा, एंड दैट इज v स्क्वायर बाई आर. v हमें गिवन है 0.4, हमने अभी कैलकुलेट किया, एंड जो रेडियस है वो है 50 बाई 100, इट विल बी 0.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So velocity 0.4 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन 0.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बात करते हैं. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है फ्रॉम व्हाट मिनिमम हाइट h must the system be released when spring is unstressed so that after perfectly inelastic collision E equals to 0 with ground B may be lift off the ground. सो यहाँ पर इनिशियली रेस्ट से हमने रिलीज किया, इनिशियल वेलोसिटी दोनों ही ब्लॉक की 0 होगी, दोनों g एक्सेलरेशन से नीचे
मूव करेंगे। यहाँ पर ये जो 2m ब्लॉक है आपका, 2m मास का जो ब्लॉक है, जस्ट बिफोर कोलिजन में बात कर रहा हूँ, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन मैं बोल सकता हूँ इनकी जो वेलोसिटी रहेगी, यहाँ पर फ्री फॉल इनका हो रहा है, फ्री फॉल है। यहाँ पर जो वेलोसिटी रहेगी वो हम लिख सकते हैं √2gh। हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं v² = u² + 2as इक्वेशन से। यहाँ पर कोई भी एलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं आएगा स्प्रिंग में, क्योंकि दोनों ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब कुछ सेम रहेगा। इसकी वेलोसिटी √2gh। अब जो बी ब्लॉक है उसकी कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो ये इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर आ जाएगा, क्योंकि कोलिजन इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो यहाँ पर पूरी एनर्जी लूज हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। हमें ये पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट से परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन करता है तो वो रेस्ट पर आ जाता है। तो इस केस में ये इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर आ जाएगा कोलिजन के बाद, और ये ब्लॉक आपका मास का जो ब्लॉक है ये नीचे मूव करेगा √2gh इनिशियल स्पीड से। एंड अभी इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी और ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। स्प्रिंग आपकी मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगी और मैक्सिमम कंप्रेशन पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी m ब्लॉक की। एंड देन वापस स्प्रिंग इसे ऊपर पुश करेगी, तो ये वापस ब्लॉक आपका ऊपर जाएगा। एंड एक पॉइंट पर इसका जो एलोंगेशन रहेगा वो मैक्सिमम आ जाएगा और इसकी अगेन वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी इस ब्लॉक की। यहाँ मैक्सिमम एलोंगेशन रहेगा, तो यहाँ तक अगर ये ब्लॉक जस्ट लिफ्ट कर जाता है तो लिफ्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये लिफ्ट नहीं होगा। तो जस्ट लिफ्टिंग का अगर मैं केस लूँ तो जो 2mg इस पर फोर्स लगेगा वो बैलेंस होना चाहिए इस स्प्रिंग फोर्स से। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर x एलोंगेशन आया है, तो यहाँ पर नॉर्मल कॉन्टेक्ट मैंने 0 कर दिया है, तो kx = mg 2mg आना चाहिए। दिस मीन्स जो एलोंगेशन है वो 2mg/k आना चाहिए। सो मैक्सिमम जो एलोंगेशन है यहाँ पर वो 2mg/k अगर होगा तो 2m वाला जो ब्लॉक है भी जस्ट लिफ्ट कर जाएगा। तो इसे एक और इक्वेशन हम बना सकते हैं यहाँ पर, एनर्जी कंजर्वेशन ऑन ब्लॉक m। ब्लॉक ए पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इनिशियल मोमेंट ये ले लेते हैं, सपोज ये इनिशियल अपना मोमेंट है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियल, और ये हम ले लेते हैं फाइनल मोमेंट। यहाँ से यहाँ मैं ब्लॉक एम को स्टडी करूंगा, ए को, और इसकी एनर्जी कंजर्वेशन को देखेंगे। सपोज ये स्प्रिंग की लेंथ एल है और यहाँ पर अगर एलोंगेशन एक्स आ गए तो ये लेंथ एल प्लस एक्स हो जाएगी। तो हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी लिख सकते हाफ एम √2gh² इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0 एंड ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgl इक्वल्स टू फाइनल मोमेंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 ब्लॉक ए की, एंड स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ की x² एंड ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgl प्लस x। इसे सॉल्व कर सकते हैं हम, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हाफ m 2gh 2gh प्लस 0 mgl इक्वल्स टू हाफ kx² प्लस mgl plus mgx. So mgl will be cancelled out. mgh equals to half kx² plus mgx. We can write k, or we can replace mg. So we have to find h, we can replace x. So mgh equals to k by 2 x². We are given, we have calculated x equals to 2mg/k. So we can solve this, plus mg 2mg/k. So mgh equals to 2
m square g square by k plus 2 m square g square by k. mg will be cancel out, so h will be 2 mg by k plus 2 mg by k. So h will be 4 mg by k. So the height for just lifting of block B required is 4 mg by k. So answer B is correct answer. Let's see the next problem number 5. A uniform rope of linear mass density lambda and length L is coiled on a smooth horizontal surface. One end is pulled up with constant velocity. तो यहाँ पर हमें constant velocity V given है. Then the average power applied by the external agent in pulling the entire rope just off the ground. तो basically यहाँ से ये जो भी situation है, यहाँ पर हम V constant speed V से pull कर रहे हैं, एंड जस्ट ये जब लिफ्ट हो जाएगी पूरी रोप लिफ्ट जब हो जाएगी, तब उस केस में हमें बोला कि कितनी एवरेज पावर हमने डेवलप की है. तो एवरेज पावर हमें पता है, एवरेज पावर हम बोल सकते हैं जो भी वर्क आपने किए अपॉन टाइम, जो भी एनर्जी आपने डिलीवर की है, वर्क जो किया है, वर्क डन पर यूनिट टाइम बेसिकली पावर रहता है. तो एवरेज पावर वर्क अपॉन टाइम. यहाँ पर जो लेंथ है वो हमें एल गिवन है, तो यहाँ पर लेंथ एल होगी. अगर हम इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन इस तरीके से देखें कि जो पुल कर रहे हैं हम यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट जो इसको पुल कर रहा है, तो पुलिंग में बेसिकली होगा क्या, एक तो आपको जो जो भी मास एक्स्ट्रा आ रहा है आपका, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जा रहे हो, तो जो भी एक्स्ट्रा मास आ रहा है उस एक्स्ट्रा मास को एक वेलोसिटी देनी पड़ेगी. और अगर एक्स्ट्रा मास एडअप हो रहा है सिस्टम में, वेरिएबल मास सिस्टम है, तो इस पर एक थ्रस्ट फोर्स टाइप भी लगेगा जो इसे नीचे पुल करेगा, नीचे की तरफ होगा. तो यहाँ पर अगर मैं सपोज ये एज्यूम कर लेता हूँ कि किसी भी टाइम टी पर, एट एनी टाइम टी, सपोज आपकी जो रोप है वो वाई हाइट ऊपर आ चुकी है और अभी डी वाई हाइट पर और ऊपर आनी है. तो इस केस में अगर देखें तो यहाँ पर आपने जो अभी तक जो वर्क किया, बेसिकली अभी तक आपने ये जो रेस्ट पर था उसे वाई लेंथ जो कि रेस्ट पर थी इनिशियली, उसे आपने वी स्पीड दे दी है. तो आपने वाई लेंथ की काइनेटिक एनर्जी चेंज कर दी है अभी जो वर्क किया आपने. तो अभी जो वर्क आ जाएगा हमारा, हम ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स अगर हम देखें यहाँ पर, तो इस पर नीचे mg लग रहा होगा और एक थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा. थ्रस्ट फोर्स की जो वैल्यू होती है वो v इंटू लैम्डा होती है, dm बाई dt. तो इसे हम v लैम्डा लिख सकते हैं. यहाँ पर हमें लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा दे रखी है, तो मास पर यूनिट लेंथ हमें गिवन है, तो हम इसे dm बाई dt ही लिखेंगे, लैम्डा से रिप्लेस नहीं करेंगे. ओरिजिनल फॉर्मूले में यहाँ पर लैम्डा होता है. dm बाई dt, अगर dy लेंथ आ रही है आपकी, तो dy लेंथ का जो मास होगा वो लैम्डा इंटू dy होगा. dy लेंथ का मास dm इक्वल्स टू लैम्डा dy. एंड dm बाई dt हम यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारा आएगा लैम्डा dv बाई dt. dv बाई dt y हाइट किस रेट से इंक्रीज कर रही है, तो बेसिकली v स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो हम इसे लैम्डा v लिख सकते हैं. तो ये हमारा आ जाएगा लैम्डा v स्क्वायर. तो थ्रस्ट फोर्स लैम्डा v स्क्वायर है, mg है. तो जो एक्सटर्नल एजेंट ऊपर फोर्स लगाएगा इस वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए, वो फोर्स आपका होगा एक्सटर्नल फोर्स का वर्क, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स आपका होगा mg प्लस लैम्डा वी स्क्वायर. mg की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर y लेंथ आ चुकी है, तो लैम्डा इंटू वाई बेसिकली मास होगा, g प्लस लैम्डा वी स्क्वायर. तो हमने एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू निकाल ली है, ये y पर डिपेंड करेगी. एंड यहाँ पर अगर हम इसका वर्क कैलकुलेट करना चाहें तो इसका वर्क होगा एफ डॉट डी एस. तो एफ एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट हम वाई डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो लैम्डा वाई जी प्लस लैम्डा वी स्क्वायर डी वाई, और लिमिट 0 टू एल, 0 से स्टार्ट करके हम एल तक इंटीग्रेट करेंगे. ये इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं. यहाँ पर डब्ल्यू जो वर्क है वो हमारा हो जाएगा लैम्डा जी वाई स्क्वायर बाई 2 0 to L प्लस लैम्डा वी स्क्वायर वाई 0 to L.
this will be lambda g l square by 2 plus lambda v square l। एंड यहाँ पर टाइम की हम बात करें, कितने टाइम में आपकी जो स्ट्रिंग है वो वर्टिकल हो जाएगी कंप्लीटली, ग्राउंड को जस्ट लिफ्ट करेगी। तो हम देख सकते हैं कि पहले आपकी पूरी जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड पर थी, एंड देन स्ट्रिंग जस्ट लिफ्ट कर रही है। इस केस में कांस्टेंट स्पीड से ये ऊपर लेके गए हम इसे। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किए फ्रंट एंड टॉप एंड ने, वो एल ट्रेवल किए डिस्टेंस। तो जो टाइम लगेगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम बोल सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से ये फ्रंट एंड ऊपर जा रहा है। तो एवरेज पावर मैं यहाँ लिख सकता हूँ वर्क अपॉन टाइम लैम्डा जी एल स्क्वायर बाई 2 प्लस लैम्डा वी स्क्वायर एल बाई वी, एंड दिस विल बी लैम्डा जी एल वी बाई 2 प्लस लैम्डा वी क्यूब। तो ये हमारी एवरेज पावर आएगी। ये आंसर लैम्डा वी क्यूब अपॉन लैम्डा जी एल वी बाई 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। Next question, question number 6. The sixth question says three particles are projected in air for maximum range such that the first goes from A to B. The first वो A से B जा रहा है, incline है, inclination alpha में given है, and second from B to C, B से C जा रहा है, alpha angle again, and third from C to A, ये एंगल आपका अल्फा होगा। तो ये एंगल हम बोल सकते हैं यहाँ पर 90 माइनस अल्फा होगा। A and C are horizontal level. So basically AB is projectile down the incline, BC is projectile up the incline, and AC is horizontal projectile on ground. We can assume ground level this because A and C are on same horizontal level. The two incline makes same angle alpha as shown in the figure. Then the relation among the projection speed of the three particles. So for maximum range, we can remember for maximum range of up the incline, up the incline, we can write maximum range equals to u square upon g 1 plus sine theta. Theta is angle of projection, so in our case it will be u2 square upon g 1 plus sine alpha. Angle of inclination is alpha. So this is the maximum range for BC. And for down the incline, range R is given by u square upon g 1 minus sine theta. So we can write it as u1 square upon g 1 minus sine alpha. एंड अगर हम BC की बात करें तो यहाँ पर एक ट्राइंगल हमें दिख रहा है। ये पॉइंट B है, ये C है, ये A है। AC लेंथ की अगर हम बात करूं तो ये एंगल अल्फा हमें गिवन था, ये रेंज हमने कंसिडर की है। एंड यहाँ पर ये डिस्टेंस आपकी r cos अल्फा आ जाएगी। सिमिलरली ये भी r cos अल्फा आ जाएगी। सो हम लिख सकते हैं फॉर AC the range is 2r cos alpha, and for ground to ground projectile the maximum range is u square by g, so we can write it as u3 square by g. So from equation 1, 2 and 3, so we can write from first and second. u1 square into u2 square equals to rg 1 minus sine alpha rg 1 plus sine alpha.
So u1 u2 will be rg root over 1 minus sine square alpha. This will be cos alpha. This is equation 4. u1 u2 equals to rg cos alpha. From 4 and 3 we can write 2u1 u2 equals to u3 square. So this will be our answer. 2u1 u2 equals to u3 square. The relation between these three speeds. Our answer will be B. Let's move to the next problem. Next problem question number 7. Question says a uniform disk is lying on a board of same mass. Mass basically same है दोनों का. Equal and opposite forces have been applied on the disk and the board as shown in the figure. The horizontal surface on which the board is placed is frictionless. तो नीचे हमें कोई भी friction यहाँ पर नहीं given है, mu 0 है. No slipping take place between the disk and the board. Initially, the whole system was in the state of rest. If at any instant the center of the disk has velocity v with respect to ground, then its angular velocity will be equals to. तो basically जो डिस्क है उसकी वेलोसिटी हमें गिवन और एंगुलर वेलोसिटी पूछिए. तो यहाँ पर अगर हम देखें ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी इधर आएगी. मैं मान लेता हूँ उसकी वेलोसिटी v1 इधर है और इसका एक्सेलरेशन a1 इधर है. एंड सिमिलरली अगर हम बात करें डिस्क की, डिस्क के लिए वेलोसिटी इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमें v गिवन है एंड इसकी एंगुलर वेलोसिटी हम ओमेगा एज्यूम कर लेते हैं. तो ये वेलोसिटी वेरिएबल्स हमने एज्यूम कर लिए. तो अगर यहाँ कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है तो मैं बोल सकता हूँ जो कांटेक्ट पॉइंट है उनकी वेलोसिटी सेम रहेगी. तो यहाँ पर जो कांटेक्ट पॉइंट है इसकी वेलोसिटी v1 है प्लेटफॉर्म पर, और जो डिस्क पर है इसकी वेलोसिटी इधर ओमेगा r होगी एंड इधर वेलोसिटी होगी. तो इस डायरेक्शन में इसकी नेट वेलोसिटी ओमेगा r माइनस बी आएगी. तो अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है तो ओमेगा r माइनस बी और v1 इस तरीके से रिलेटेड होंगे. इक्वेशन 1. नेक्स्ट हम ये बोल सकते हैं अगर हम यहाँ पर फ्रिक्शन और इनकी बात करें तो प्लेटफॉर्म पर फोर्स इधर लगा है, इसका एबीडी अगर मैं ड्रॉ करूं, और डिस्क पर फोर्स हमने इधर लगाया है. तो ये पॉइंट की टेंडेंसी इधर जाने की और इस पॉइंट की टेंडेंसी इधर जाने की. तो यहाँ पर फ्रिक्शन पीछे इस डायरेक्शन में लगेगा एफ और एक्शन रिएक्शन इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा. इसका एंगुलर एक्सेलरेशन मैं अल्फा मान लेता हूँ. यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एंड इसका इधर एक्सेलरेशन जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वो हम मान लेते हैं ए. सो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पर डिस्क के लिए अगर मैं बात करूं तो डिस्क के लिए मैं इक्वेशन लिख सकता हूं पहले सेंटर ऑफ मास पर. सेंटर ऑफ मास बेसिकली ये है, इस पर नेट फोर्स आप देख सकते हो एफ माइनस एफ आर होगा एंड इट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन हमने ए एज्यूम किया है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन. इस पर टॉर्क की इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं. टॉर्क की इक्वेशन अगर हम देखें, टॉर्क की इक्वेशन के लिए हम लिख सकते हैं एफ आर इंटू आर, और इसका जो एक्सटर्नल फोर्स है इसका टॉर्क 0 आएगा, सेंटर से पास कर रहा है, इक्वल्स टू आई अल्फा. आई डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाई 2 हम लिख सकते हैं इंटू अल्फा. इक्वेशन 2. इक्वेशन 3. नाउ प्लेटफॉर्म की बात करते हैं या बोर्ड, यहाँ पर हमें जो गिवन है. तो प्लेटफॉर्म या बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो इसका एक्सेलरेशन हमने इधर एज्यूम किया है लेफ्ट साइड में. तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ एफ माइनस एफ आर इक्वल्स टू एम ए वन. इक्वेशन नंबर 4. दोनों का मास सेम है बेसिकली, हम इक्वेशन में गिवन है. तो हमारे पास ये 4 इक्वेशन आ गई है. इन चारों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. तो यहाँ पर एक्सेलरेशन और ये वैल्यूज हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इनकी कैलकुलेशन करते हैं. यहाँ पर हम एक और इक्वेशन लिख सकते हैं. अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें
तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो इसका वेलोसिटी का जो डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन आ जाएगा a1 r एल ओमेगा का जो डिफरेंशिएशन है एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, एंड v जो प्लेटफॉर्म, सॉरी जो डिस्क है इसकी जो वेलोसिटी है उसका डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन। तो ये इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं इक्वेशन 5 में इसे बोल देता हूँ। तो हमारे पास 5 इक्वेशन आ गई हैं बेसिकली। इन पांचों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन के लिए सॉल्व करते हैं। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड मैं लिख सकता हूँ, बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पर r कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, तो f माइनस एम आर अल्फा बाई 2, फ्रिक्शन की वैल्यू जो 3 में थी वो मैंने 2 में पुट कर दिया, इक्वल्स टू एम ए। एंड सिमिलरली अगर आप इक्वेशन 3 एंड 4 की बात करो तो 3 एंड 4 में भी हम फ्रिक्शन की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं एफ, एंड ये आ जाएगा आपका एम आर अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू एम ए 1। दोनों इक्वेशन से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि ए विल बी इक्वल्स टू ए 1। सो ए इक्वल्स टू ए 1 हमारे पास आ गया। एंड ये अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, इसको मैं सिक्स्थ इक्वेशन बोल देता हूँ, तो फ्रॉम सिक्स्थ एंड फिफ्थ आप लिख सकते हो a1 इक्वल्स टू आर अल्फा माइनस a1, और आपके पास यहाँ a1 आ जाएगा आर अल्फा बाई 2, और यही इक्वल्स टू a होगा। तो बेसिकली एक रिजल्ट हमारे पास आ गया है, a1 इक्वल्स टू आर अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू a। अब हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई है, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है। तो अगर हमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन की वैल्यू एग्जैक्ट हम निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ वाली, इसमें मैं पुट कर देता हूँ आर अल्फा बाई 2 को ए, तो एफ यहाँ से इस इक्वेशन से मैं लिख रहा हूँ एफ माइनस एम ए बाई 2 इक्वल्स टू एम ए। आर अल्फा बाई 2 को मैंने ए पुट कर दिया इसकी हेल्प से, यह आ जाएगा एफ इक्वल्स टू 3ma/2, और आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा 2f/3m। तो बेसिकली जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर वो हमारा आएगा 2f/3m। तो किसी भी टाइम t पर जो वेलोसिटी रहेगी, एनी टाइम t पर वेलोसिटी u प्लस ए टी, तो u0 एक्सेलरेशन आपका 2f/3m t। तो ये हमें v गिवन इक्वेशन में 2f/t/3m। एंड हमें पता है कि जो एंगुलर वेलोसिटी आपकी, तो एंगुलर वेलोसिटी के लिख सकते हैं ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो एनी टाइम टी पर जो ओमेगा होगी इनिशियल 0 प्लस अल्फा, अल्फा की अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पर इस सेवंथ इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ अल्फा इक्वल्स टू 2a/r। तो मैं इसे लिख देता हूँ 2a/r एंड टी। एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देता हूँ, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2f/3m और टी। ओमेगा हमारा आ जाएगा 4f/3mr/t। यहाँ से अगर हम देखें v की वैल्यू 2ft/3m है, तो मैं इसे लिख देता हूँ 2v/r। तो ओमेगा हमारा आ जाएगा इन दोनों की हेल्प से 2v/r। तो जिस टाइम पर v वेलोसिटी होगी उस टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी 2v/r, ऑप्शन सी। तो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। The question says two identical sleeves A and B, each of mass m, can slide without friction on a fixed horizontal load. A load C of mass 2m is suspended from the midpoint of a light inextensible cord of length L equals to 3√3 meter. Connecting the sleeves A and B. Initially the sleeves are at the separation L. तो basically सबसे पहले ये जो लेंथ थी आपकी, ये हमें गिवन है एल, तो हम ये समझ सकते हैं कि दोनों जो स्लीव्स है आपके ए एंड बी, अभी इन दोनों के बीच में सेपरेशन एल है। दिस मीन्स जो आपका सी है वो यहाँ होगा। अभी ये सिचुएशन होगी,
एंड द लोड इज हेल्ड मोशनलेस, तो सिस्टम अभी मोशनलेस है. व्हाट कैन यू कंक्लूड फॉर सब्सिक्वेंट मोशन आफ्टर द लोड इज रिलीज्ड, लोड को रिलीज करने पर हम क्या बोल सकते हैं. एक्सेलरेशन हमें 10 लेना है. मैक्सिमम स्पीड हमें पूछ रखी है स्लीव की. ओके, मैक्सिमम स्पीड हमें पूछ रखी है लोड की. एंड द लोड डिस्टेंस है हाइट 1.5 मीटर टू. ओके, सो यहाँ पर बेसिकली ये स्लीव्स क्लोज आएंगे और ये जो लोड है वो नीचे डिसेंड करेगा. सी, हम किसी रैंडम टाइम पर देख लेते हैं. सपोज ये एंगल थीटा है, सिमेट्री से बोल सकता हूँ ये भी थीटा होगा. जो ये पॉइंट होगा इसकी स्पीड नीचे होगी. इसे मान लेते हैं v1 एंड स्लीव्स इधर आ रहे हैं तो इनकी स्पीड में मान लेता हूँ v2. दोनों सिमेट्री है तो मैं v2 अज्यूम कर लेता हूँ. सबसे पहले मैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा देता हूँ. स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंगली जो भी कॉन्टेक्ट पॉइंट है ये स्ट्रिंग के, इनके अलोंग वाली जो वेलोसिटी रहेगी दोनों पॉइंट की सेम रहेगी. तो v1 का अगर मैं कंपोनेंट की बात करूँ, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा आएगा तो ये एंगल थीटा आ जाएगा. तो v1 cos थीटा एंड v1 sin थीटा. सिमिलरली v2 की अगर मैं बात करूं तो v2 वेलोसिटी इधर है तो इसका एक कंपोनेंट हम देख सकते हैं इधर आ जाएगा v2 cos थीटा एंड इधर कंपोनेंट आएगा v2 sin थीटा. तो इसके अलोंग वाले जो कंपोनेंट है v2 cos थीटा एंड v1 sin थीटा, ये दोनों इक्वल होने चाहिए स्ट्रिंग कंस्टेंट से. तो v1 sin थीटा इक्वल्स टू v2 cos थीटा. सो v1 tan थीटा इक्वल्स टू v2 होगा. फर्स्ट हमने ये इक्वेशन बना लिया स्ट्रिंग कंस्टेंट से. अब हमें इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है. तो मैक्सिमम वेलोसिटी हम किसी भी एंगल पर इसकी वेलोसिटी निकालते हैं. तो मैं यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूँ. तो इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की वो 0 है, मोशनलेस है. एंड यहाँ पर ये रेफरेंस में ले लेता हूँ, रेफरेंस लाइन में ये ले लेता हूँ ग्रेविटेशनल एनर्जी के लिए. तो इनिशियल ग्रेविटेशनल एनर्जी 0 हो जाएगी इक्वल्स टू, फाइनली अगर मैं बात करूं तो सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है हाफ, और जो स्लीव्स है उनका मास m है और जो लोड है उसका मास 2m है. तो हम लिख सकते हैं हाफ m v स्क्वायर, एक स्लीव की एनर्जी होगी और ये दोनों स्लीव की प्लस हाफ 2m. एंड ये v2 था और v1 स्क्वायर प्लस जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लाइन से नीचे चला गया तो नेगेटिव में आ जाएगी माइनस m, दिस मीन्स 2m. c का मास 2m है. स्लीव की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी 0 ही रहेगी. एंड ये जो हाइट है वो हम लिख सकते हैं ये लेंथ l/2 होगी क्योंकि टोटल l है तो ये l/2, ये भी l/2. तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये l/2 साइन थीटा. तो इस तरीके से हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं. यहाँ से हमें स्लीव और लोड की वेलोसिटी चाहिए. तो लोड की वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं. m v2 स्क्वायर प्लस m v1 स्क्वायर एंड इक्वल्स टू हम कर सकते हैं mgl साइन थीटा. यहाँ से मैं रिप्लेस कर देता हूँ चीज़ों को. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं m v2 को मैं लिख सकता हूँ v1 tan थीटा होल स्क्वायर प्लस m v1 स्क्वायर इक्वल्स टू mgl साइन थीटा. m कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से एंड v1 स्क्वायर कॉमन आएगा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज sec स्क्वायर थीटा. तो मैं यहाँ से v1 स्क्वायर लिख सकता हूँ gl साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. ये बेसिकली हमारी फर्स्ट वेलोसिटी आएगी v1 लोड की वेलोसिटी. एंड अगर मुझे स्लीव की वेलोसिटी निकालनी है मैं ये वैल्यू यहाँ लिख लेता हूँ रेफरेंस के लिए. gl v1 स्क्वायर इक्वल टू gl sin theta cos square theta and v2 will be root over gl sin theta cos square theta into tan theta. v2 हमारा आ जाएगा रूट ओवर gl sin theta एंड इसको रूट में अगर हम लेके आए तो हम इसे लिख सकते हैं साइन तो ये साइन क्यूब थीटा आ जाएगा हमारा. तो ये आप देख सकते हो साइन क्यूब थीटा. tan थीटा को रूट में लेके आएंगे तो tan स्क्वायर होगा ये एंड cos स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट sin क्यूब थीटा. तो हमने यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिए. v1 जो लोड है एंड v2 जो स्लीव है.
अब मैक्सिमम वेलोसिटी अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रखी थी ऑप्शन में, तो ऑप्शन में बोल रखा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ स्लीव इज दिस। तो यहाँ से मुझे ऐसे लगता है कि मैक्सिमम स्पीड जो रहेगी वो थीटा 90 पर रहेगी। तो V2 की जो मैक्स वैल्यू है वो आपकी होगी √/GL, जिसे आप लिख सकते हो √10, और L की वैल्यू हमारे पास हमें गिवन थी, लेट्स चेक, L की वैल्यू 3√3। तो हम L की वैल्यू लिख देते हैं 3√3। तो बेसिकली जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, √10 नहीं आ रहा है। ओके, अब बात करते हैं V1 के मैक्सिमम वैल्यू। तो ये जो V1 मैक्सिमम जहां पर होगा वहां पर V1 स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। तो मैं इसका मैक्सिमम निकाल लेता हूँ y एज्यूम करके इसे। तो dy/dt 0 पुट कर देते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हम पुट करेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेते हैं ताकि हमारा डिफरेंशिएशन इजी हो जाए। GL, एंड मैं कोस स्क्वायर थीटा को लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। तो इस तरीके से साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और ये 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा चेन रूल, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव इसका 0 पुट कर देते हैं। तो यहाँ से कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट रूट अपना कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 आएगा, एंड सेकेंड रूट आपका साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√3। कॉस थीटा 0 मतलब सॉरी कॉस थीटा 0, थीटा 90 डिग्री, एंड दूसरा हमारा साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√3। हमें इसको चेक करना पड़ेगा सेकेंड डेरिवेटिव कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है। तो यहाँ से अगर देखें तो मैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेता हूँ, d2y/dt, सॉरी डी थीटा था ये, प्लीज करेक्ट, डी थीटा स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं GL, एंड सेकेंड डेरिवेटिव हमें चेक करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएशन में इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ सेकेंड डेरिवेटिव को। dy जो डी थीटा हम इसे लिख सकते हैं GL कॉस थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कॉस थीटा को एज इट इज रख लेंगे, एंड इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा -6 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड प्लस 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा। ये सेकेंड डेरिवेटिव आएगा हमारा, सॉरी माइनस आ जाएगा यहाँ पर, एंड साइन थीटा। इसका जो डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल मैंने यहाँ पर लगा दिया, कॉस थीटा एज इट इज, एंड 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन -6 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड सिमिलरली प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज सेकेंड फंक्शन, एंड कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। यहाँ से पहले चेक कर लेते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। अगर मैं कॉस थीटा 0 पुट करता हूँ, दिस मीन्स साइन थीटा आपका 1 होगा उस केस में। सो d2y/d थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारा कॉस थीटा 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, एंड यहाँ पर साइन थीटा 1 है तो ये हमारा -3 यहाँ से आएगा, -2 एंड +2। तो यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, दिस मीन्स ये मिनिमम वाला पॉइंट होगा। एंड सिमिलरली अगर हम चेक करेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√3, उस केस में हमारा d2y/dt थीटा स्क्वायर वो नेगेटिव आ जाएगा, दिस मीन्स वो मैक्सिमम। सो ये हमारा मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा, मैक्सिमा। इस एंगल पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब मैक्सिमम स्पीड भी हम निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम स्पीड के लिए मैं यही एक्सप्रेशन यूज में ले लेता हूँ, v1 स्क्वायर इक्वल्स टू GL साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं v1 स्क्वायर इक्वल्स टू GL, ये वैल्यू पुट कर देते हैं g10 3√3 साइन थीटा 1/√3 एंड साइन क्यूब 1/3√3। ये आ जाएगा 10, 3 minus 1, that is 20. So v1 equals to √20. So maximum velocity will be maximum velocity of load will be √20. So √20 we can say 2√5. So option B is correct. Option A is not correct.
द लोड डिसेंड्स एट अ हाइट 1.5 मीटर टू एक्वायर मैक्सिमम स्पीड। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम स्पीड के टाइम पर एंगल देख सकते हैं कितना डिसेंड कर रहा है ये। तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई थी, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√3, और हमने ये एंगल अज्यूम किया था थीटा, ये लेंथ l/2 और ये जो हाइट है h, तो हाइट h आपकी l/2 साइन थीटा होगी, l आपकी 3√3 है बाई 2, साइन थीटा 1/√3, तो ये आ जाएगा 3/2, 1.5. So option C is also correct. Before sleeves collide, the net force on the system consisting of the sleeves, the cord and the load becomes 0 months. Force on the system consisting the sleeves, the cord and the load becomes 0 months. So basically इस केस में हमें बोल रखा है कि जब आपका जो स्लीव है जब कोलाइड होंगी उससे पहले आपका जो फोर्स है सिस्टम पर वो आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसा इसलिए बोल सकते हैं हम कि आपका जो लोड है इसकी वेलोसिटी अगर मैं देखूं तो इसकी वेलोसिटी पहले इंक्रीजिंग है वेलोसिटी, जैसे जैसे नीचे जाएगा, और एक हाइट पर जाने के बाद में इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लग जाएगी। कहने का मतलब है ये पहले एक्सेलरेट करेगा और फिर डिसलेट करेगा। तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, दिस मीन्स वहाँ पर इसका डेरिवेटिव 0 है, दिस मीन्स एक्सेलरेशन 0 है। तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पर इस पर एक्सेलरेशन 0 है, एंड ये जो स्लीव्स है इन पर ऑलरेडी नॉर्मल कॉन्टेक्ट बैलेंस हो रहा है mg से, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक पॉइंट डेफिनेटली जो मैक्सिमम वेलोसिटी वाला पॉइंट है जहाँ पर नेट फोर्स सिस्टम पर 0 होगा, तो हम डी बी करेक्ट बोल सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 9. The question says a particle is projected from the ground in Earth's gravitation field at an angle theta with the horizontal. तो हमने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया u इनिशियल स्पीड से और पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करेगा. Then the center of curvature of projectile, okay, center of curvature. So center of curvature की अगर हम बात करें तो center of curvature यहाँ पर जो स्पीड रहेगी टॉप मोस्ट पॉइंट पर वो u cos थीटा होगी as we know, और एक्सेलरेशन यहाँ पर z होगा. ROC अगर मैं बात करूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर वो आपकी होती है v स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर. तो यहाँ पर वेलोसिटी आपकी u cos थीटा, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन इज z. सो ROC यहाँ पर ये आएगी. अब यहाँ पर अगर हम देखें जैसे ये पाथ इसने फॉलो किया है और हम यहाँ पर जो भी ये जो पॉइंट है ये बेसिकली इस सर्कल का पार्ट है, तो उस केस में जो सेंटर है वो आपका ग्राउंड से नीचे भी हो सकता है और ग्राउंड से ऊपर भी हो सकता है, ये ROC होगी. तो अगर सेंटर बिलो द ग्राउंड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज बिलो द ग्राउंड, अगर बिलो है ग्राउंड के तो हम बोल सकते हैं कि जो ROC है वो बड़ी होगी मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल. ये बेसिकली मैक्सिमम हाइट होगी प्रोजेक्टाइल की. ROC हमने लिख दिया u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई g इज ग्रेटर देन h, जो मैक्सिमम हाइट है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. इसे हम सॉल्व कर सकते हैं. tan स्क्वायर थीटा लेस देन 2 एंड यहाँ से tan थीटा हमारा आ जाएगा लेस देन √2. तो अगर tan थीटा लेस देन √2 है या फिर थीटा लेस देन tan इनवर्स ऑफ √2 है, तो उस केस में आपका बिलो दी ग्राउंड होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ प्रोजेक्टाइल्स ट्रेजेक्टरी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज बिलो द ग्राउंड लेवल इफ थीटा लेस देन tan इनवर्स √2. तो ये करेक्ट है, हमारे यही आ रहा है. और अबव द ग्राउंड के लिए जो ये इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, तो थीटा ग्रेटर देन आ जाएगा. तो अबव के लिए मैं बोल सकता हूँ कि थीटा ग्रेटर देन आना चाहिए. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ प्रोजेक्टाइल्स ट्रेजेक्टरी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज अबव द ग्राउंड इफ थीटा ग्रेटर देन. सो बी भी करेक्ट है, ए और बी दोनों करेक्ट होंगे यहाँ पर. एंड सी की बात करें तो कॉन्ट्राडिक्टरी करेंगे ए और बी से, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आंसर ए एंड बी. मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, क्वेश्चन नंबर 10. The question says X-ray from a tube with a target
A of atomic mass number Z shows a strong K line for target A and weak K lines for impurities. The wavelength of K alpha line is lambda Z for target A and lambda 1 lambda 2 for two impurities. So relation हमें given है lambda Z upon lambda 1 equals to 4, lambda Z upon lambda 2 1/4. स्क्रीनिंग कांस्टेंट हमें गिवन है, बी की वैल्यू हमें 1 गिवन है यहाँ पर के अल्फा लाइन के लिए, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू है। हम मोजलेस लॉ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। रूट न्यू जो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी है, दैट विल बी ए जेड माइनस बी, एंड यहाँ पर अगर मैं न्यू को सी बाई लैम्डा लिख सकता हूँ, तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं, सी बाई लैम्डा इक्वल्स टू ए स्क्वायर जेड माइनस बी की वैल्यू मैं 1 पुट कर देता हूँ, एंड ए की वैल्यू लाइन पर डिपेंड करती है कि आपने कौन सी लाइन चूज की है। तो हमने सभी के अल्फा लाइन की बात कर रहे हैं, तो सभी के लिए इम्प्योरिटी और सभी के लिए ए की वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 1 बाई लैम्डा है वो प्रोपोर्शनल है जेड माइनस 1 के स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लैम्डा जेड अपॉन लैम्डा 1 लिख सकता हूँ, लैम्डा जेड। तो यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो Z1 जो फर्स्ट इम्प्योरिटी है उसका एटॉमिक नंबर -1 स्क्वायर अपॉन Z माइनस 1। सो लैम्डा Z बाई लैम्डा 1 हमें 4 गिवन है, तो मैं इसे 4 पुट कर देता हूँ। तो हमारे पास Z माइनस 1, ये स्क्वायर है सॉरी, Z1 माइनस 1 इक्वल्स टू 2Z माइनस 1 आ जाएगा, 2Z माइनस 2। सो Z1 विल बी 2Z माइनस 1। तो हमारा Z1 का आंसर आ जाएगा, जो फर्स्ट इम्प्योरिटी है उसका एटॉमिक नंबर 2Z माइनस 1। तो फर्स्ट इम्प्योरिटी के लिए हम बोल सकते हैं ये ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड इम्प्योरिटी के लिए सेम कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ से सेकेंड के लिए लिख देता हूँ, लैम्डा Z बाई लैम्डा 2 इक्वल्स टू Z2 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन Z माइनस 1 स्क्वायर, और ये हमें 1/4 गिवन है यहाँ से। So 2 Z2 minus 1 equals to Z minus 1, and Z2 आपका आ जाएगा Z by 2 minus Z by 2 minus half plus 1. So it will be Z plus 1 by 2. So the second impurity's atomic number will be Z plus 1 by 2. So correct answers are A and C. Let's move to the next problem. Question number 11. The question says, in another world, instead of Coulomb's law, electric force F on a point-like charge Q, small q, due to another point-like charge capital Q is found to obey the following law. Basically, Coulomb law change हो गया दूसरे planet पर. Alpha positive constant, R is the position vector of Q with respect to capital Q. ये capital Q है, ये small q है, इसका position vector इसके respect में R हमें given है, and हमें force given है Q 1 minus root alpha R over 4 pi epsilon naught R cube, and R वेक्टर हमें गिवन है यहाँ पर। सो F वेक्टर हम लिख सकते हैं Q 1 माइनस रूट अल्फा R कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R पावर 4। बेसिकली मैंने R कैप को रिप्लेस कर दिया है, R कैप इंटू R से हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, सॉरी। सो F इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर 1 माइनस रूट अल्फा R कैप। सो इस तरीके से हमने R वेक्टर को R कैप की फॉर्म में लिख लिए, एंड यहाँ से फोर्स फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट चार्ज, तो F बाई क्यू हमारा आंसर रहेगा फर्स्ट पार्ट के लिए, एंड ये देखते हैं क्या आएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर 1 माइनस रूट अल्फा R कैप, या फिर हम बोल सकते हैं Q। बेसिकली मैंने यहाँ से Q को डिवाइड कर दिया, या आप यहाँ से
इस इक्वेशन को यूज में ले सकते हो। तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा अपना रूट अल्फा आर आर वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो फर्स्ट अगर ऑप्शन हम चेक करें तो ये मैच कर रहा है, सॉरी मैंने इससे मैच कर लिया, क्यूब 1 माइनस रूट अल्फा आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आर वेक्टर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Let's see the option B. Line integral of this electric field over a closed path is also zero. तो बेसिकली लाइन इंटीग्रल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हमें पोटेंशियल देता है या चेंज इन पोटेंशियल हमें देता है। तो चेंज इन पोटेंशियल अगर पाथ से इंडिपेंडेंट है, अगर पोटेंशियल पाथ से इंडिपेंडेंट है तो ये आपका कंजर्वेटिव फील्ड होगा, और कंजर्वेटिव फील्ड है तो क्लोज लूप में पाथ सॉरी वर्क जीरो आएगा या डेल्टा वी जीरो आएगा। तो हमें कंजर्वेटिव है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा। तो हम चेक कर लेते हैं, वर्क कैलकुलेट करते हैं इस फोर्स इस फील्ड के लिए। तो इस फील्ड के लिए जो वर्क रहेगा एफ डॉट डी आर हम लिख सकते हैं। तो ये हम लिख देते हैं एफ हमारे पास है क्यू क्यू 1 माइनस रूट अल्फा आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर। सपोज ये R1 से R2 पोजीशन पर हम जा रहे हैं तो वर्क आ जाएगा क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड यहाँ पर R पावर -2 इंटीग्रेशन में हम लिख सकते हैं R पावर -2 एंड माइनस रूट अल्फा R पावर हाफ -2 दिया। हम इसे लिख सकते हैं क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट R पावर -2 माइनस रूट अल्फा R पावर -3/2 dr R1 to R2। इसे कैलकुलेट करते हैं क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आ जाएगा R पावर -1 माइनस रूट अल्फा प्लस 1/2 रूट R1 to R2। तो बेसिकली ये इंटीग्रेबल फंक्शन है, इंटीग्रेशन हो रहा है इसका विदाउट कंसिडरिंग द पाथ टेकन फ्रॉम R1 to R2। अगर R1 से R2 हम जा रहे हैं तो ये जो वर्क है इस पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर पाथ की हमें जरूरत नहीं पड़ी है। ये केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है R1 एंड R2। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ये फील्ड है वो कंजर्वेटिव है, ये इलेक्ट्रिक जो फील्ड है ये कंजर्वेटिव है। ये कंजर्वेटिव है तो मैं बोल सकता हूँ कि क्लोज लूप में इसका जो वर्क रहेगा वो जीरो रहेगा, या बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। तो ये जो लाइन इंटीग्रल है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है ये जीरो होगा। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की, गाउस लॉ फॉर दिस होल्ड्स ट्रू। तो यहाँ पर हमें गाउस लॉ को अगर देखें तो जो फील्ड है उसको मैं लिख लेता हूँ एक बार के लिए, 1 माइनस रूट अल्फा आर आर कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो बेसिकली यहाँ पर जो फील्ड है आपका, जैसे पॉइंट चार्ज है तो किसी भी आर डिस्टेंस पर मैं बात करूँ तो फील्ड सेम रहेगा और आर कैप की डायरेक्शन में रहेगा। तो आप डायरेक्टली जो फ्लक्स है वो लिख सकते हो, फ्लक्स जो कि होगा ई डॉट डी एस। यहाँ पर इन सभी पॉइंट पर ई सेम है तो मैं डायरेक्टली ई डॉट एस कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा क्यू 1 माइनस रूट अल्फा आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। एंड यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये आर पर डिपेंडेंट आ रहा है। इट इज नॉट इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट विल डिपेंड ऑन दी पोजिशन ऑल्सो। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं गाउस लॉ इस फील्ड के लिए वैलिड नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर अपना आंसर केवल और केवल ए एंड बी होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। The question says a long thin wooden cylindrical pipe of radius r carrying a uniform surface charge density sigma is rotating about its axis with an angular velocity omega that increases slowly with time t as omega equals to kt. The k is positive constant. Which of the following statements are correct? So magnetic field, electric field. So we have to find magnetic field and electric field inside the वुडन सिलेंड्रिकल पाइप। सो बेसिकली यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पर। तो यहाँ पर अगर ये रोटेट कर रहा है सिलेंडर तो हम बोल सकते हैं ग्राउंड फ्रेम से हमें चार्ज फ्लो होते हुए दिखाई देंगे। तो करस्पॉन्डिंग करंट हम मान सकते हैं कि यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है, चार्ज अगर मूव कर रहे हैं। तो जो करस्पॉन्डिंग करंट है वो हम लिख सकते हैं, ये जो करंट है
ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट आई अज्यूम कर लेते हैं। करंट आई अगर है यहाँ पर तो जो आई है उसे हम लिख सकते हैं बेसिकली क्यू चार्ज आपका। अगर ये किसी भी क्रॉस सेक्शन छोटा सा एलिमेंट हम ले लेते हैं, सपोज ये छोटा सा एलिमेंट हम ले लेते हैं dx लेंथ का, तो इसमें जो चार्ज है q अपॉन टाइम जो लगेगा, चार्ज अपॉन टाइम, ये हमारी करंट आ जाएगी। चार्ज अपॉन टाइम बेसिकली 2π/ओमेगा हम इसे लिख सकते हैं। तो करंट है बेसिकली प्रोपोर्शनल है ओमेगा के। हमें एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं कैलकुलेट करनी, हमें केवल प्रोपोर्शनलिटी चेक करनी है। तो आई बेसिकली प्रोपोर्शनल होगा ओमेगा के। एंड यहाँ पर हम मान सकते हैं कि ये सोलेनोइड की तरह है। सोलेनोइड की तरह है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर म्यू नॉट एन आई होगा, एंड म्यू नॉट नंबर ऑफ ट्रांसपेरेंट लेंथ, एंड आई बेसिकली ओमेगा के प्रोपोर्शनल है, तो मैं बोल सकता हूँ बी भी आपका ओमेगा के प्रोपोर्शनल रहेगा। तो बी बेसिकली के टी के प्रोपोर्शनल रहेगा या बी टाइम के प्रोपोर्शनल होगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ेगा, कांस्टेंट नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन में मैं बोला है द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट विद टाइम, तो करेक्ट है, ये कांस्टेंट नहीं है, वेरी ही करेगा। बी ऑप्शन द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट बट नॉन यूनिफॉर्म एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म बट नॉट कांस्टेंट। तो बेसिकली यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन ऐसा नहीं होता, सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने की जरूरत नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये स्टेटमेंट। सी ऑप्शन द टोटल एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू द बोथ फील्ड्स वेरी विद टाइम। तो बेसिकली यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी देखूं, मैग्नेटिक फील्ड की जो डेंसिटी रहती है, फील्ड डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी सॉरी, तो एनर्जी डेंसिटी इसकी रहती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये रहती है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो बेसिकली आपका जो बी है वो टाइम डिपेंडेंट है, तो एनर्जी डेंसिटी भी टाइम डिपेंडेंट आएगी मैग्नेटिक फील्ड की। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डेंसिटी अब वो टाइम से इंडिपेंडेंट आए चाहे नहीं आए, ये डेफिनेटली ये टर्म तो टाइम पर डिपेंडेंट है, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी भी टाइम पर डिपेंडेंट होगी। तो मैं बोल सकता हूँ सी ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो आप कर सकते हो यहाँ पर। अगर आर डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो आप लिख सकते हो 2πr इंटू ई इक्वल्स टू d∅dt जो फ्लक्स है। तो 2πr ई इक्वल्स टू जो फ्लक्स है वो आपका आएगा पाई आर स्क्वायर dB/dt, एंड dB/dt बेसिकली बी टी की फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल है, तो ये कांस्टेंट आएगा। तो ई हमारा यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। तो ई एक कांस्टेंट रहेगा, वो टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि एनर्जी डेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वो टाइम से इंडिपेंडेंट होगी। तो ओवरऑल इंटेंसिटी आपकी जो एनर्जी डेंसिटी है वो टाइम पर डिपेंडेंट होगी। डी ऑप्शन की बात करते हैं, बोथ द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट। नहीं, ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, तो डी ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ए एंड सी दो आंसर होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, क्वेश्चन 13। The question says four identical bulbs A, B, C, and D are connected in a circuit as shown in figure. Now, whenever any bulb fails, then it cannot conduct current through it. तो बेसिकली अगर कोई बल्ब फेल हो रहा है तो करंट नहीं कंडक्ट करेगा, दिस मीन्स इसका जो रेजिस्टेंस है वो इन्फाइनाइट हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह हम मान सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं क्या कहा गया है। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब सी इज हाईएस्ट, तो बेसिकली ये ऑप्शन के लिए मैं रीड्रॉ कर लेता हूँ सर्किट को। तो मैं बल्ब को रेजिस्टेंस से शो कर रहा हूँ। सो यहाँ पर अगर मैं डी रेजिस्टेंस की बात करूँ, आइडियल बैटरी का ईएमएफ ही है, तो ये डी रेजिस्टेंस या डी बल्ब हमें शॉर्ट सर्किट डायरेक्टली दिख रहा है, इनके दोनों एंड को डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहेगा, तो ये ग्लो नहीं करेगा, तो इसकी ब्राइटनेस जीरो रहेगी बेसिकली। तो डी बल्ब की ब्राइटनेस जीरो रहेगी। एंड ए और बी और सी की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो ये पोटेंशियल अगर आप रेफरेंस जीरो लेते हो तो यहाँ पर जीरो आएगा, और ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा।
एंड यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर पोटेंशियल ई आ जाएगा और यहाँ पर पोटेंशियल ई। तो आप देख सकते हो सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई है और ए बी के सीरीज के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई है। अगर ये आइडेंटिकल है तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो E/2 एंड E/2 आएगा। तो अगर आइडेंटिकल बल्ब है तो सी पर ज्यादा पोटेंशियल है तो ये ज्यादा ग्लो कर रहा होगा, ए और बी कम ग्लो कर रहे होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी पर बात करते हैं, सी फेल्स ब्राइटनेस ऑफ बल्ब डी इंक्रीजेस। तो अगर सी फेल करता है तो बी डी की अगर मैं बात करूं, सी को मैंने ओपन सर्किट कर दिया है, अगर ये फेल हो जाता है तो ओपन सर्किट होगा। तो बी और ए और डी को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, सी को मैंने ओपन कर दिया यहाँ से, कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर अगेन डी की बात करूँ तो ये शॉर्ट सर्किट है अभी भी और यहाँ पर ये ग्लो नहीं करेगा तो इसकी ब्राइटनेस उतनी ही रहेगी। तो अगर सी फेल होता है तो डी नहीं ग्लो करेगा, इसकी ब्राइटनेस 0 ही रहेगी। तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। एंड सी की बात करते हैं, सी ऑप्शन, इफ सी फेल्स ब्राइटनेस ऑफ ऑल बल्ब्स रिमेन सेम। तो अगर सी फेल होता है तो डी तो ग्लो नहीं करेगा, हम देख चुके हैं बी पार्ट में। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रेफरेंस 0 ले लेता हूँ यहाँ, तो यहाँ 0 पोटेंशियल है, 0 पोटेंशियल और ये ई है तो यहाँ पर ई पोटेंशियल। तो आप देख सकते हो अभी भी दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो E/2 आएगा और जब सी था तब भी E/2 था। तो कोई भी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हुआ इनके अक्रॉस, तो आप बोल सकते हो ब्राइटनेस उनकी सेम रहेगी, उतनी ही रहेगी। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। डी ऑप्शन की बात करते हैं, इफ ए फेल्स बी विल नॉट ग्लो। तो अगर ए फेल होता है तो ए को हम ओपन सर्किट कर देते हैं। तो डी ऑप्शन के लिए मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, यहाँ पर ए को फेल कर दिया हमने, मतलब ये ओपन सर्किट हो गया। तो आप देख सकते हो बी में इधर कोई करंट नहीं फ्लो होगी, करंट केवल यहाँ से जाएगी इधर और इसमें भी कोई करंट नहीं जाएगी क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया डी बी। तो बेसिकली सी ही ग्लो करेगा, बी और डी इस केस में ग्लो नहीं करेंगे। तो अपना डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो यहाँ पर आंसर होगा ए, सी एंड डी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन सेज हाईली कंडक्टिंग cylindrical vessel placed on elevated small supports contains an ideal gas under a piston of mass m. Area of the base of the cylinder is A. हमें base area given है A. The piston is in equilibrium. Base area मैं ले लेता हूँ A. Piston is in equilibrium in the mid of the cylinder. तो अभी ये mid में है, मतलब ये हाइट अगर आप h ले रहे हो तो ये हाइट भी h होगी, ये लेंथ। The friction forces between the cylinder and piston can be ignored. Friction नहीं है, total mass of cylinder and the gas is m. cylinder और गैस का mass m है and the atmospheric pressure P0 हमें given है। Now the piston is slowly pulled upward. तो इसे हमने slowly ऊपर pull किया, suppose external force F external हमने apply किया। Find the maximum value of m, capital M, such that cylinder can be lift off the supports. तो बेसिकली ये जो सपोर्ट्स हमें दे रखे हैं यहाँ से सिलेंडर आपका लिफ्ट कर जाना चाहिए। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। पिस्टन का मास हमें स्मॉल m गिवन है। तो इनिशियल सिचुएशन देखते हैं सबसे पहले। अभी पिस्टन इक्विलिब्रियम में है तो आप बोल सकते हो जो पिस्टन का एबीडी है हम बना सकते हैं। पिस्टन का मास m है तो mg फोर्स लग रहा होगा। गैस का प्रेशर मैं मान लेता हूँ P1 है, तो इनिशियल प्रेशर P1 है तो P1A यहाँ पर प्रेशर लग रहा होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो फोर्स लगेगा P0A। एंड फ्रिक्शन वगैरह absent है तो आप बोल सकते हो P0A प्लस mg इक्वल्स टू P1A, फर्स्ट इक्वेशन। एंड जब पिस्टन हम मूव करवाएं, यहाँ पर हमें बोला गया है कि m का मास कितना होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, सच दैट द पिस्टन कैन बी लिफ्ट ऑफ द सपोर्ट्स। तो सपोर्ट से नॉर्मल कांटेक्ट यहाँ से बेसिकली 0 हो जाना चाहिए। तो अगर यहाँ से नॉर्मल कांटेक्ट 0 है, इस पूरे सिस्टम को अगर मैं देखूँ, पिस्टन आपने यहाँ मूव करवा दिया और अगर सपोर्ट से फोर्स नहीं लग रहा है तो यहाँ पर mg लगेगा और पिस्टन और गैस पर कैपिटल mg और बाहर आपने एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल लगाया। आप स्लोली मूव करवा रहे हो तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा, F एक्सटर्नल आपका आना चाहिए mg प्लस mg। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स लगेगा लेकिन वो दोनों तरफ सेम लगेगा तो उसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। वो एक्स जो एक्सटर्नल फोर्स है जब ये लिफ्ट करेगा तो आपका ये आना चाहिए mg प्लस mg। पिस्टन का अगर एफबीडी बनाए फाइनल कंडीशन में पिस्टन का एफबीडी बनाते हैं अगर, तो mg फोर्स लगेगा, प्रेशर चेंज हो जाएगा क्योंकि गैस एक्सपेंड कर रही है
और हमें हाईली कंडक्टिव दे रखा है, तो जो प्रोसेस होगी वो आइसोथर्मल होगी। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो प्रेशर चेंज होगा। तो प्रेशर यहाँ पर P2 में मान लेता हूँ, P2A, पिस्टन पर ऊपर से फोर्स लगेगा P0A एटमॉस्फेरिक प्रेशर और F एक्सटर्नल। यहाँ से मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, ये जो प्रीवियस इक्वेशन थी इसे मैं 2 लिख रहा हूँ। पिस्टन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं यहाँ से, नीचे की डायरेक्शन में फोर्स है mg प्लस P0A एंड ऊपर फोर्स आएगा F एक्सटर्नल प्लस P2A, इक्वेशन 2। तो बेसिकली हमने इनिशियल और फाइनल कंडीशन को स्टडी करके ये इक्वेशंस निकाल लिए। इक्वेशन 3 है ये। सो इन्हें सॉल्व करते हैं। तो पहले 2 एंड 3 से अगर मैं देखूँ, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू रख देता हूँ, तो mg प्लस P0A इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल में लिख देता हूँ mg प्लस mg सेकेंड इक्वेशन से प्लस P2A। यहाँ से mg कैंसिल आउट हो जाएगा, P0A इक्वल्स टू mg प्लस P2A। एंड यहाँ पर हम P1 P2 कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं देखूं तो P1 लिख सकता हूँ P0 प्लस mg बाई ए, एंड यहाँ से मैं P2 लिख सकता हूँ P0 माइनस कैपिटल mg बाई ए। तो बेसिकली यहाँ से हम P1 और P2 की वैल्यू हमारे पास पता है। अब जो प्रोसेस थी गैस की वो आइसोथर्मल थी, तो मैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए लिख सकता हूँ P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो P1 बेसिकली आपका था P0 प्लस mg बाई ए, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया था, ये P1 इक्वल्स टू P0 प्लस mg बाई ए। एंड यहाँ पर जो वॉल्यूम आएगा, तो वॉल्यूम आएगा क्रॉस सेक्शन एरिया, वॉल्यूम को लिख देते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू इनिशियल हाइट h थी। हमने यहाँ पर देखा ये जो हाइट है ये मिड पॉइंट पर था तो h थी। फाइनली प्रेशर P2 हो गए तो P0 माइनस कैपिटल mg बाई ए इंटू वॉल्यूम हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट, यहाँ पर सॉरी लेंथ जो है कंटेनर की या गैस का जो वॉल्यूम है उसकी जो हाइट रहेगी वो 2h होगी। इसे सॉल्व कर सकते हैं हम। P0 प्लस mg बाई ए इक्वल्स टू 2P0 माइनस 2mg बाई ए। सो 2mg बाई ए आपका आ जाएगा P0 minus mg by a. So m will be P0 a by 2g minus m by 2. So basically अपना आंसर रहेगा P0 a minus m g by 2. तो P0 a minus mg by 2 2g तो 2g LCM आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मास है मैक्सिमम इतना हो सकता है जिससे ये कंटेनर लिफ्ट करे जब पिस्टन हाईएस्ट पॉइंट पर चला जाएगा, जस्ट यहाँ। आंसर यहाँ पर अपना आ जाएगा बी। तो क्वेश्चन 14 में आंसर बी। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन 15 एंड 16 पैराग्राफ बेस्ड है। A person wants to roll a solid non-conducting spherical ball of mass and radius r on a surface whose coefficient of static friction is mu. He placed the ball on the surface wrapped with n turns. N turns है basically total turns है, closely packed conducting coils of negligible mass at the perimeter. तो basically इसका mass हमें negligible मानना है. By some arrangement he is able to pass a current I through the coil either in the clockwise direction or in anti-clockwise direction. A constant horizontal magnetic field B is present throughout the space as shown in the figure. B horizontally x direction में. Assume mu is large enough to help the rolling motion. So if the current I passes through the coil, the initial torque in the coil. तो basically coil horizontal है, इसमें I इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो राइट हैंड थंब रूल से हम बोल सकते हैं ऊपर की डायरेक्शन में आएगा। जब आप करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करोगे तो थंब ऊपर आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये आएगा एन आई और इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। एंड यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। हमें पता है किसी भी करंट कैरिंग लूप पर जो टॉर्क लगता है दैट इज m क्रॉस b
तो हम बोल सकते हैं जो टॉर्क का वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपकी एम आपका है एन आई पाई आर स्क्वायर जे कैप क्रॉस बी आई कैप. So n I pi r square b and j cap cross I cap will be minus k cap. So यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा माइनस पाई एन आई आर स्क्वायर बी के कैप. सो माइनस के कैप में है तो माइनस के कैप में ऑप्शन अपना केवल ए है और मैग्नीट्यूड पाई एन आई आर स्क्वायर बी के कैप. सो 15 में अपना आंसर आ जाएगा ए. 16 पर मूव करते हैं. क्वेश्चन 16 द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट हैज रोटेटेड थ्रू एंगल थीटा. तो अगर एंगुलर वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है और जब ये थीटा एंगल रोटेट हो जाएगा तो उस केस में अगर देखें तो अगर हमारे पास अल्फा आ जाए, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाए, तो वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले. तो यहाँ पर हम एक रैंडम सिचुएशन ले लेते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो थीटा से रोटेट कर गया है. तो यहाँ पर जो आपके वायर्स रहेंगे, कॉइल जो है वो भी थीटा से रोटेट कर जाएगी. लेट्स से दिस एंगल इज थीटा. तो अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड और जो एम वेक्टर आपका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो इसी डायरेक्शन रहेगा और बी इस डायरेक्शन में. तो आपका जो एंगल है इन दोनों के बीच में वो 90 माइनस थीटा होगा. टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो ये आएगा एन आई ए एम बी एंड साइन 90 माइनस थीटा जो कि हो जाएगा आपका कॉस थीटा. तो एन आई ए बी कॉस थीटा. सो बेसिकली ये जो टॉर्क है ये इस डायरेक्शन में इसे रोटेट करवाएगा. तो यहाँ पर अगर एफबीडी बनाए इसका तो टॉर्क जो लग रहा है, एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क लग रहा है, ये इसको ऐसे रोटेट करवाएगा और अगर इस पॉइंट की टेंडेंसी पीछे जाने की हुई तो फ्रिक्शन इसमें आगे लगेगा. इसका एक्सेलरेशन मैं ए मान लेता हूँ और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मान लेता हूँ. एंड इस पर और कोई फोर्स बाहर से नहीं लग रहा है तो हम इस पर इक्वेशन लिख सकते हैं. एफ आर जो फ्रिक्शन है वो आपका आ जाएगा एम ए फ्रिक्शन सेंटर ऑफ मास पर. एंड टॉर्क की इक्वेशन अगर लिखें तो जो एक्सटर्नल टॉर्क है मैग्नेटिक फील्ड का वो है एन आई ए बी कॉस थीटा. एंड जो फ्रिक्शन का टॉर्क है वो आप देख सकते हो इस अल्फा के अपोजिट है, या इस जो टॉर्क है जो मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में रोटेट करवाना चाह रहा है फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवाना चाह रहा है. तो मैं इसे माइनस लिख सकता हूँ एफ आर इंटू यहाँ पर जो रेडियस है आर. यहाँ पर रेडियस स्मॉल आर ही हमें गिवन है. इस टॉर्क को लिख सकते हैं, इसको हम बाद में आगे लिख लेंगे. ये आ जाएगा आई अल्फा. और ये जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉल. तो हमें सॉलिड लेना है. कभी भी हॉलो या सॉलिड नहीं गिवन होता तो हमें बाय डिफॉल्ट सॉलिड लेना होता है 2/5 एम आर स्क्वायर अल्फा. एंड अगर कोई भी प्योर कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है तो प्योर रोलिंग के लिए मैं लिख सकता हूँ ए इक्वल्स टू आर अल्फा. तो मुझे बेसिकली यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है. एन आई ए को लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर बी कॉस थीटा एंड माइनस एफ आर को मैं इस इक्वेशन से लिख रहा हूँ एम ए. तो एम ए आर इक्वल्स टू 2/5 एम आर स्क्वायर अल्फा. एंड प्योर रोलिंग की जो इक्वेशन है वहां से ए की वैल्यू मैं रख रहा हूँ एन आई पाई आर स्क्वायर बी कॉस थीटा माइनस एम, इसे लिख सकते हैं ए को आर अल्फा. तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 2/5 एम आर स्क्वायर अल्फा. इसे हम आगे सॉल्व करते हैं. एन आई पाई आर स्क्वायर बी कॉस थीटा इक्वल्स टू ये बन जाएगा 7/5 एम आर स्क्वायर अल्फा. ये आर स्क्वायर आपका कैंसिल आउट. अल्फा जो आपका आएगा 5 एन आई पाई बाई 7 और बी कॉस थीटा. और हमें पता है जो अल्फा है उसे हम लिख सकते हैं ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा. जैसे हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी एस, सिमिलरली हम अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी में इस तरीके से लिख सकते हैं. तो यहाँ से ओमेगा डी ओमेगा आपका आ जाएगा 5 एन आई पाई बी बाई 7
cos थीटा d थीटा, और हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से ओमेगा और थीटा 0 से एनी थीटा. So it will be omega square by 2 equals to 5 ni pi b by 7. एंड cos थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा sin थीटा, उसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, sin थीटा माइनस sin 0 0. सो ओमेगा इक्वल्स टू रूट ओवर 10 एन आई पाई बी sin थीटा अपॉन 14, सॉरी 7. सो ये हमारा आंसर होगा यहाँ इस केस के लिए. 10/7 एन आई पाई बी sin थीटा. तो ये ऑप्शन देखते हैं. 10/7, तो बेसिकली 10/7 ये ऑप्शन में आ रहा है, एन आई पाई बी अपॉन एम साइन थीटा. तो 16 के लिए हमारा आंसर होगा ए. 1 सेकेंड, एम को हमने मिस किया है शायद, यहाँ से हमने एम को डिवाइड नहीं किया इधर, तो एम को डिवाइड करना है, तो ये चेक करना है. यहाँ पर हमने एम को यहाँ पर मिस कर दिया था, ये एम. सो बेसिकली ऑप्शन देख के ये हम बोल सकते हैं ये अपना आंसर रहेगा. मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर. क्वेश्चन 17-19, अगेन पैराग्राफ. If no external force is acting on the system, net linear momentum of the system is conserved. If system is acted upon by some external force, the component of momentum of the system along which no external force is present on the vector sum. So basically यहाँ पर हमें momentum और conservation के लिए theory given है. In the case of symmetrical body, we take the axis of rotation through center body, obviously. Question 17. The maximum height to which the center of mass of the sphere will climb on the curved portion of the wedges. So basically जो situation हमें given है वो इस type से है कि ये wedge है आपका, जिसका mass 4m है, और ये आपका solid sphere है जिसका mass m है, और हमने यहाँ पर इसे impulse दी है. Basically इस impulse से अगर देखें इस impulse का क्या इफेक्ट होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इम्पल्स देने पर जो कि लोकेशन जो है सेंटर से 0.4 आ रहा है, तो इस इम्पल्स से बेसिकली मोमेंटम आ जाएगा इसके पास में. तो अगर मैं लीनियर मोमेंटम की बात करूं तो जो इम्पल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है. तो मान लेता हूं कि जैसे ही हम इम्पल्स देंगे, आपका जो सॉलिड स्फीयर है वो यू स्पीड से और यू स्पीड से मूव करेगा, और आप देख सकते हो इस फोर्स से इम्पल्स एक टॉर्क भी आ जाएगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. तो इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी आ जाएगी, और वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, वो हम इस इम्पल्स की डायरेक्शन से देख सकते हैं. चेंज इन मोमेंटम को अगर मैं लिखूं यहाँ पर, पी अपना चेंज इन मोमेंटम होगा इम्पल्स, तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल एम यू, लीनियर मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं. सो यू हमारे पास आ जाएगा p/m. एंड हमें ओमेगा कैलकुलेट करना है, तो हमें एंगुलर इम्पल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो इस इम्पल्स का जो मोमेंट है वो आ जाएगा आपका p इंटू सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.4r, एंड ये इक्वल्स टू होगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इम्पल्स चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर i ओमेगा 2/5 mr² एट ओमेगा -0. सो ओमेगा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर p/mr. सो हमने जस्ट इम्पल्स देने के बाद इसकी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिए. इसी के हेल्प से हम आगे क्वेश्चन 17 कर सकते हैं. हमें पता है कि यहाँ से राइट साइड में कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन 0 है. तो जैसे ही ये आगे मूव करेगा इधर, तो वेज पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा, और उसकी वजह से वेज भी मूव करने लग जाएगा. जैसे कांटेक्ट में आएगा वेज पर नॉर्मल कांटेक्ट लगेगा, नो डाउट इस पर भी लग रहा होगा. तो वेज भी एक्स डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा. तो होगा क्या यहाँ पर, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे जैसे ये स्फीयर आगे मूव करेगा, वेज की वेलोसिटी इधर बढ़ेगी, और जो ये स्फीयर है वो पहले यहाँ था, फिर ये यहाँ आ जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी जो
स्पीड है वो कम होती जाएगी, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल में, और कुछ पार्ट इस वेज के पास भी जाने वाला है। लेकिन अगर मैं रोटेशन की बात करूं ओमेगा की, तो वो चेंज नहीं होगा, ओमेगा कांस्टेंट होगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर टॉर्क जीरो है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर इस सरफेस पर फ्रिक्शन जीरो है। तो आपका टॉर्क मैं बोल सकता हूँ जीरो रहेगा, तो ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर चला जाएगा, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर चला जाएगा तो ये रोल कर रहा होगा ऐसे ओमेगा से। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर आएगा तो ये रोल कर रहा होगा ओमेगा से, एंड दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे होंगे इधर। v1 मान लेते हैं इसे। तो ये देख सकते हैं हम, ये दोनों सेम वेलोसिटी इसलिए होगी क्योंकि दोनों यहाँ कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में रिजिड बॉडी है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी होगी। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन अगर लगाएं इनिशियल मोमेंट से और फाइनल मोमेंट तक, इनिशियल मोमेंट को भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये वैज और ये रेस्ट पर है। जस्ट इम्पल्स देने के बाद में यहाँ पर वेलोसिटी p/m है, एंड इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, जो कि p/mr है। तो इसी की हेल्प से यहाँ से इनिशियल से फाइनल में एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूँ। तो यहाँ पर एनर्जी हाफ एम p/m स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, या फिर हम डायरेक्टली बिना एनर्जी कंजर्वेशन से v1 निकाल सकते हैं। 1 सेकेंड, हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करवा सकते हैं, क्योंकि पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो इनिशियल जो लीनियर मोमेंटम है वो आ जाएगा p/m इंटू एम, सॉलिड स्फीयर का, वेज का जीरो इनिशियल लीनियर मोमेंटम, और फाइनली सिस्टम का जो एक्स डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम है वो आ जाएगा 5m टोटल मास, जो कि 4m प्लस m होगा इंटू v1। सो v1 हम लिख सकते हैं p/5m। ये v1 हमने कैलकुलेट कर लिए, एंड नाउ we can apply energy conservation. So the energy here is half m v square p/m square प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी है इस सॉलिड स्फीयर की। वेज रेस्ट पर है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जीरो। फाइनली इस सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी पूरे सिस्टम की हाफ 5m p/5m v1 स्क्वायर, बेसिकली हाफ m v स्क्वायर। एंड ये अभी भी रोल कर रहा है उसी एंगुलर वेलोसिटी से, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। प्लस ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी एम जी एक्स में, मान लेता हूँ ये सपोज एक्स साइड ऊपर चला गया। तो यहाँ से देखें, अगर वेज की पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी, वो उतनी ही रहेगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा p²/2m इक्वल्स टू p²/10m प्लस mgx। तो यहाँ से x हमारा आ जाएगा, इट विल बी p²/2m माइनस p²/10m अपॉन ये mg लिखते हैं। तो x हमारा आ जाएगा यहाँ से ही 4/10 2/5 p²/m, एंड यहाँ से mg आ जाएगा तो m²g। तो बेसिकली ये अपना आंसर होगा 2p² अपॉन 5m²g, 2p² अपॉन 5m²g, ऑप्शन ए। 18 क्वेश्चन में हमें बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम व्हेन स्फीयर इज एट हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, हमने ये एक्सप्रेशन लिखा था, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी थी। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हाफ 5m p/5m स्क्वायर प्लस हाफ i 2/5 ओमेगा 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था p/mr स्क्वायर, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, p²/10m प्लस यहाँ से हम लिख सकते हैं p²/5m, और ये हमारा आ जाएगा 3p²/10m। तो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर 3p²/10m, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो ओवरऑल यहाँ पर देखें तो जो
ये क्वेश्चन है काफी सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बन सकता था अगर यहाँ पर हम फ्रिक्शन राइट साइड में ले लेते। अगर फ्रिक्शन राइट साइड में होता और लेफ्ट साइड में 0 होता, उस केस में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता, कॉन्सेप्चुअली काफी रिच क्वेश्चन बन जाता। थैंक यू।